Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are fine. So as you all know that we are doing chapter number 10, Living Creatures Exploring Their Characteristics from our Science NCERT book, Curiosity. We have already covered part 1 and part 2 of this lesson. Today we are going to learn more about this lesson and we'll proceed with the lesson by learning the life cycle of plants as well as life cycle of some of the animals. So let's get started with the lesson. Life cycle of a plant. We have learned about conditions required for germination and how plants grow and exhibit movement. Let us now explore the changes of a plant undergoes in its whole life. So what are the changes which a plant undergoes in its whole life? Activity 10.4, let us explore. Plant a bean seed and provide suitable conditions for its growth. Observe regularly for 3 months. Record your observation in table 10.4 as and when changes becomes visible. Note the date when any change is observed. Record answers for the following questions. How long does it take for any change to occur? Make sketches of various changes that you observe in table 10.4. After how many days does the first flower appear? So what you have to do, सबसे पहले आपको एक bean seed को plant करना है और सारी conditions जो important है उसके growth के लिए like water, air, sunlight you have to provide it और इसको 3 months आपने observe करना है. जब जब आपको उसके अंदर चेंज नजर आए आपने इस टेबल में ऑब्जर्व करना है 10.4 में. ठीक है, उसके लिए आपको जब आपको चेंज नजर आए आपको उसकी डेट या डेज अकॉर्डिंगली नोट करने हैं. ठीक है, देन यू हैव टू ऑल्सो ड्रॉ द स्केचेस कि आपको सबसे पहले क्या नजर आया फिर क्या नजर आया एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज डू यू थिंक फर्स्ट फ्लावर अपीयर. After some parts of a flower have dried, can you see any further growth? अगर फ्लावर के कुछ पार्ट्स ड्राई हो जाते हैं तो क्या आपको कुछ ग्रोथ नजर आती है? विच स्ट्रक्चर डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू? जो फ्लावर के रिमेनिंग पार्ट रह जाते हैं वो फ्लावर क्या आगे क्या किस चीज में डेवलप होते हैं? Can you notice a pod or a fruit with seeds develop from a flower? What happens to the plant after fruits containing seeds are formed? So all the changes you have to write here with the date or days and you have to write the observation as well as the sketches. Now I have written day 1 seeds are sown. सबसे पहले seed sow करें. ठीक है, देखो ये sketch ऐसे draw कर सकते हो आप day 1 का. ठीक है, देन डे 4 और 6 पे क्या नजर आया? द सीड कोट्स ऑफन एज सीड स्वेल्स एज वाटर इज ऑब्जर्व्ड. ठीक है, अब डे 4 या 6 में हमें नजर आया कि सीड कोट जो है वो सॉफ्ट होके जो है वो उसने पानी ऑब्जर्व कर लिया और वो सॉफ्ट हो गया, स्वेल हो गया. ठीक है, ऐसे हो गया. देन डे 8-10 root appears showing growing downward and shoot appears. See, root नीचे की तरफ जा रही है, shoot ऊपर की तरफ जा रही है. Day 8-10 क्या है? मतलब 8 से 10 दिन में रूट और शूट हमें दोनों नजर आ गए. So these were the changes observed during a growth of a plant and the sketches. Go through the observations you recorded regarding the growth of a bean plant in table 10.4. What changes do you observe after the fruits are formed? एक fruit अगर form होता है उसके बाद आपने क्या changes नजर आए उसमें आपको वो लिखना है. Does the plant become yellow and dry even when you continue watering it? Sow the seeds obtained from your bean plant. Watch how the seeds give rise to a new generation of bean plant. Compare the sketches you have drawn in table 10.4 with figure 10.4. तो आपने क्या करना है, आपने चेंजेस देखने हैं कि फ्रूट के बाद क्या हुआ, क्या वो प्लांट येलो ड्राई होता जाता है अगर आप उसको पानी दो तब भी. ठीक है, या फिर एक सीड जो है वो किस तरह से एक बीन प्लांट को जो है वो राइज करता है
वो आपको लिखना है. अ सीड ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट एंड मैच्योर्स टू फ्रूट एंड फ्लावर्स. तो एक सीड जो है वो यंग प्लांट में ग्रो होता है और वो जब मेच्योर होता है और बड़ा होता है तो वो फ्लावर और फ्रूट में चेंज हो जाता है. द फ्रूट इन दिस केस अ पॉड contains seed which give rise to new generation of bean plant. The entire process of from a seed to a plant and then to next generation of seed is called life cycle of a plant. When a plant stops growing and all activities of life gradually comes to an end, even after the availability of all necessary condition, the plant is considered to be dead. तो लाइफ साइकिल की यहाँ डेफिनेशन दी है क्या कि एक एंटायर प्रोसेस, पूरा प्रोसेस जिसमें सीड से लेके प्लांट तक ग्रो होता है और उसके बाद वो नेक्स्ट जनरेशन की सीड्स आ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. एक प्लांट अगर ग्रो होना बंद कर दे, सारी एक्टिविटीज छोड़ दे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम उसको सारी कंडीशंस दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, हम उसको सनलाइट भी दे रहे हैं, एयर भी दे रहे हैं, सारी कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद भी वो ग्रो नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट प्लांट इज डेड. ओके, सी लाइफ साइकिल ऑफ अ बीन प्लांट. अब यहाँ लाइफ साइकिल दी है यहाँ पर बीन प्लांट की. स्टेज 1 कौन सी है, देखो स्टेज 1 यहाँ पे दी है ना, ठीक है, यहाँ पर सीड दिया हुआ है, ठीक है. स्टेज 2 में सीड जर्मिनेशन हो रही है, यहाँ पर 3 में क्या हो रहा है, अपीयरेंस ऑफ, इस पे लीव आ गई, यहाँ पे फ्लावर्स नजर आ रहे हैं आपको, है ना. फिर ये और बड़ा होगा तो क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ फ्रूट, ठीक है. अब हम इसको पानी देते रहे, जो मर्जी करें, अगर वो एक्टिविटी सारी बंद हो गई तो इट मीन्स इट इज अ डेड प्लांट. ओके, ये है. और अगर इट गिव राइज टू अनदर फ्रूट और अ पॉड विद सीड्स, तो वो न्यू जनरेशन को आगे राइज कर रहा है, ठीक है. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बीन प्लांट. Now life cycle of animals. We have learned about life cycle of a plant. We have seen that the plant grows through many changes in its life cycle. Have you ever observed how animals grow over time? Draw sketches of their young ones and name them. So you have to draw sketches. आपको animals के बारे में अब जानना है, ठीक है. तो animals में आपको क्या करना है, उनके young ones के, जैसे cat हो गया, kitten हो गया, है ना, कैट का किटन हो गया, डॉग का पपी हो गया, तो ऐसे आपको क्या करना है, उनके यंग वंस के स्केचेस बनाने और उनको नेम करना है. ओके, लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो. सबसे पहले मॉस्किटो है. मॉस्किटो आपने देखा ही होगा आपके घर में, मॉस्किटो मच्छर आ जाता है ना, और आपके कान के आसपास बहुत परेशान करता है आके, या आपको कट कर, बहुत ज्यादा जो है वो मच्छर जो आपको काट जाते हैं ना, तो उससे बिल्कुल रेड रैश हो जाता है कई बार हमें बहुत ज्यादा. तो वी विल लर्न अबाउट देयर लाइफ साइकिल. मॉस्किटोज बजिंग अराउंड इज अ कॉमन एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस. Female mosquitoes are blood-sucking insects that transmit several diseases like malaria, डेंगू एंड चिकनगुनिया. तो अगर फीमेल मॉस्किटोज कौन सी होती हैं, जो ब्लड को सक करती हैं हमारी बॉडी से, ठीक है, और कई तरह के डिजीजेस भी स्प्रेड करते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया. यू माइट हैव लर्न फ्रॉम न्यूज़पेपर, स्कूल नोटिस बोर्ड्स or awareness campaigns that mosquito breeding should be prevented. We are advised not to allow water to stagnate anywhere in our surroundings. So हमने जगह जगह ये चीज पढ़ी है कि पानी जो है वो खड़ा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें मॉस्किटो जो है वो स्टैगनेंट वाटर में ही ब्रीड करते हैं. ओके, सो why is it so? Does stagnant water have any relation with mosquito laying eggs? Yes. Conduct a safety audit in your school, at your home and surroundings to check for stagnant water if available. Carry a hand lens to observe any small creature. Stagnant water क्या होता है, खड़ा हुआ पानी, ठीक है, जो पानी खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका हमने क्या करना है, ऑडिट करना है, या हमें चेक करना है अपने घर में या सराउंडिंग्स में या स्कूल में. और एक हैंड लेंस जो होता है ना, वो देखकर हमें ऑब्जर्व करना है. Some common places where stagnant water is likely to gather are desert coolers, planted pots and other any open container. तो stagnant water कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे डेजर्ट कूलर, जो हमारे घर में कूलर्स लगे होते हैं ना, उसमें पानी जो रह जाता है वो. प्लांटेड पॉट्स, जो पॉट्स हम जिसमें प्लांट करते हैं उसमें पानी रह जाता है, या और कोई कंटेनर हमने जैसे रख दिया, कोई डोंगा रख दिया पानी का, वो. यू मे फाइंड 2 different type of worms like creature. उसके अंदर हमें worm मतलब कीड़े नजर आएंगे, ठीक है.
They are lava and pupa, two distinct life stages during the development of mosquito. In case you observe lava and pupa, report to your teacher. तो उसमें आपको छोटे छोटे क्या नजर आएंगे, प्यूपा और लावा. ये देखो यहाँ पे पिक्चर बनी है लावा एंड प्यूपा की. ठीक है. डिस्कस विद योर टीचर क्लासमेट अबाउट नेसेसरी मेजर्स यू कैन टेक to prevent breeding of mosquitoes. What differences do you observe in the shape of lava and pupa? आपको क्या difference नजर आया? Mosquito, lava and pupa observed in water bodies repeatedly come to the water surface. What can be the reason for this? बार बार mosquito जो lava and pupa है वो water bodies में आ जाते हैं, क्यों? Mosquito, lava and pupa live in water and require air to respire. उनको एयर चाहिए और पानी चाहिए. तो पानी तो है ही, स्टैग्नेंट वाटर है जो, और उसके अंदर हमें एयर भी जो है इजीली उनको मिल जाती है. They move to the surface of water for air. How can the life cycle of a mosquito be disrupted? किस तरह से हम उसको disrupt मतलब हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. I have seen my mother spraying kerosene oil on stagnant water. Why does she do so? तो अगर हम उस पर केरोसिन ऑयल डाल दें तो क्या होगा, उस केरोसिन ऑयल से जो है वो एयर का जो वो एयर है वाटर से वो कट हो जाएगा और फिर वो इजीली डाई मतलब वो मर जाएंगे. ठीक है. तो केरोसिन ऑयल फॉर्म्स अ थिन लेयर ओवर द वाटर सरफेस. वाटर सरफेस के ऊपर एक थिन सी लेयर फॉर्म हो जाएगी जैसे ही आप केरोसिन ऑयल स्प्रे करोगे. एंड दिस लेयर सेपरेट्स वाटर फ्रॉम एयर. ठीक है. तो वाटर को एयर से सेपरेट करते हैं. डज नॉट अलाउ लावा एंड प्यूपा टू इनहेल एयर. एज अ रिजल्ट दे डाई. तो फिर वो जो है वो मर जाते हैं. ठीक है. सी द पिक्चर. ठीक है. ये प्यूपा है, लावा, एग्स. सबसे पहले एग्स आते हैं, फिर लावा, फिर प्यूपा, फिर वो चेंज हो जाता है अडल्ट मॉस्किटो. ठीक है. Activity 10.5, let us analysis. Let us solve an interesting puzzle. How will you decide which stage of lava and pupa come immediately after egg stage? अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि एग के बाद क्या आता है. अब मैंने आपको भी पिक्चर दिखाई थी ना पीछे, उसमें भी दिखाया हुआ था. Suppose you are given a container with water from a puddle containing lava and pupa. Suppose आपको एक जैसे puddle क्या होता है, गड्ढा. तो गड्ढे में से आपको पानी निकाल के दिया है और उसके अंदर लावा और प्यूपा दोनों है. तो आपको एक एक्टिविटी डिजाइन करनी है. डिजाइन एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दी स्टेजेस. सबसे पहले क्या, फिर उसके बाद क्या बनता है, फिर क्या बनता है, ये आपको बताना है. यू कैन टेक हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी डिजाइन बाय अवधि टू क्रिएट योर ओन एक्टिविटी. Step 1. I have a water container with mosquito, lava and pupa. Step 1 क्या है, आपके पास ऐसा वाटर होना चाहिए जिसमें लावा और प्यूपा दोनों हो. I will separate 4 to 5 lava and pupa into 2 separate container with same water. तो वो लावा और प्यूपा को क्या करेगी, दो कंटेनर में सेपरेट करेगी. I will observe them every day until I see them changing to the next stage. तो वो क्या करेगी, दोनों को ऑब्जर्व करेगी जब तक कि वो नेक्स्ट स्टेज में चेंज ना हो जाए. ठीक है. इफ द लावा चेंजेस इनटू प्यूपा, लावा प्यूपा में चेंज होगा, इट वुड मीन दैट लावा स्टेज कम्स बिफोर. अगर लावा प्यूपा में चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि लावा की स्टेज पहले आई. ठीक है. बिफोर इट वुड मीन दैट लावा स्टेज कम्स बिफोर प्यूपा स्टेज और वाइस वर्सा. ठीक है. और अगर प्यूपा की अगर वो प्यूपा जो है लावा में चेंज होगा तो इसका मतलब प्यूपा की स्टेज पहले है. आई विल कीप वॉचिंग बोथ द कंटेनर्स टू सी विच वन अ मॉस्किटो अपीयर्स फर्स्ट. ठीक है. पहले किसमें मॉस्किटो बना. दीज ऑब्जर्वेशंस विल हेल्प मी टू लर्न द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ. नाउ सपोज यू आर गिवन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर फ्रॉम अ puddle which contains lava and pupa. Without separating them from the container, how would you design an activity to decide which stage out of two gives way to the next? देखो अब लाइफ साइकिल यहाँ दी है. सबसे पहले क्या है, एग. स्टेज 1 में क्या है, एग. एग से वो किस में चेंज होता है, लावा में. ठीक है. सेकंड स्टेज है लावा. थर्ड स्टेज है प्यूपा. प्यूपा में चेंज हुआ. प्यूपा के बाद वो बन गया अडल्ट मॉस्किटो. ठीक है. 4 स्टेजेस हैं जो हमने लर्न करी. स्टेज 1 है एग, स्टेज 2 है लावा, स्टेज 3 है प्यूपा और स्टेज 4 है अडल्ट मॉस्किटो. तो ये आपको स्टेज वाइज इसको लर्न करना पड़ेगा.
Let us learn more about these stages in the life cycle of mosquito. Mosquitoes pass through 4 stages in their life cycle: egg, larva, pupa and adult. Figure 10.6. The adult mosquito that emerged from pupa rests briefly on the surface of water and then flies away. The adult mosquito may survive for 10 to 15 days. ठीक है, तो adult mosquito जो है वो जो pupa से निकलता है, ठीक है, और प्यूपा से निकलने के बाद वो 10 to 15 days सर्वाइव कर सकता है. We have seen that mosquito begin its life as an egg. Stage 1. सबसे पहला स्टेप है एग बनता है, एग होता है, एग में स्टेज 1 है. एग जो है वो डेवलप्स इनटू लावा, स्टेज 2. लावा ग्रोज इनटू प्यूपा, वो है स्टेज 3. एंड द प्यूपा ट्रांसफॉर्म इनटू एन अडल्ट मॉस्किटो विच इज स्टेज 4. द अडल्ट फीमेल मॉस्किटो लेज एग्स डायरेक्टली ऑन और नियर वाटर एंड साइकिल कंटिन्यू. तो अडल्ट जो फीमेल मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, एग ले करता है, कहां पर, वाटर के पास, ठीक है, या वाटर में, और ये साइकिल कंटिन्यू रहती है. क्या कौन सी साइकिल, ये 4 स्टेजेस साइकिल जो है, एग, उसके बाद क्या है, लावा, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट. Significantly changes occur in the appearance, body shape and structure during the various stages in life cycle of a mosquito. The shape of an egg is quite different from the larva. The larva appears very different from pupa. The pupa appears very distinct from adult mosquito. Is it easy to imagine that a mosquito emerged from pupa? The silk moth also passes through 4 stages. अब silk moth की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. silk moth जो है वो कहाँ से मिलता है, सिल्क फैब्रिक से, हमें सिल्क वॉर्म से. एग, लावा, प्यूपा एंड अडल्ट. एग्स हैच इनटू लावा, एग से लावा बनते हैं, विच ग्रो इन साइज, वो साइज में बढ़ते हैं, और लावा सिक्रीट थ्रेड लाइक मटीरियल विच इज रैप अराउंड देमसेल्फ बिफोर चेंजिंग इनटू प्यूपा. These are fibers used to make silk fiber in India. Khadi and Village Industries Commission, KVIC, मतलब खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, हैज सेट अप सेवरल सेंटर फॉर सिल्क प्रोडक्शन. तो इस तरीके से ये सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं. सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर एग जो है वो लावा में, एग को हैच किया जाता है, वो लावा में चेंज होता है, वो साइज में ग्रो होता है, और लावा जो है वो क्या करता है, निकालता है थ्रेड लाइक मटीरियल, ठीक है, जो रैप किया जाता है, ठीक है. रैप करने के बाद वो चेंज होता है प्यूपा में, और ये जो फाइबर्स निकलते हैं ना, थ्रेड लाइक फाइबर, इससे बनता है, यूज टू मेक सिल्क फैब्रिक, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. Activity 10.6. Let us analysis. Avdi and Ayush are dressed up in full sleeves shirt and full pants today. It has been raining intermittently for a week. They are going out with their classmates for an activity. After a brief walk led by their science teacher, they reach a shallow pond. It is surrounded by trees and tall grasses. The teacher cautions them to watch everything from a distance. So अवधि और आयुष जो हैं वो फुल स्लीव्स शर्ट एंड पैंट्स में ड्रेस्ड अप हैं, क्योंकि पूरे वीक तक बारिश जो है वो होती नहीं, ठीक है. फिर एक एक्टिविटी के लिए दे वेंट विद देयर साइंस टीचर, कहाँ पर, एक पॉन्ड के पास, और पॉन्ड के आसपास काफी ट्रीज थे, टॉल ग्रासेस थी, और टीचर ने उन्हें क्या बोला कि आप दूर से ही सारी चीजें देखो, विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस, कि किसी भी एनिमल को डिस्टर्ब करने की बजाय आप दूर से ही सारी चीजें देखो. यू मे ऑल्सो go to a small water body during the rainy season with a facilitator and explore it by taking due safety precaution. You may notice a white jelly-like substance on the surface of water towards the edge of the pond. This may also be attached to plants growing in or around the water. This jelly-like substance is actually a cluster of eggs of a frog and is known as spawn. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जेली लाइक, व्हाइट कलर का जेली लाइक सब्सटेंस होता है वाटर के सरफेस पे, ठीक है. किसी भी पॉन्ड पे आप जाओगे तो आपको वो नजर आ जाएगा. इस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, एग्स हैं, किसके, फ्रॉग के.
which is known as spawn. Observe the features of stages of frog in figure 10.7. How will you decide the sequence of stages? Some of the stages show distinct changes in their initial and final stages. ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चेंजेस आपको बताने हैं. ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन यू हैव टू लिस्ट ओवर हेयर कि ये क्या क्या चेंजेस हैं यहाँ पर आपको वो बताने हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये स्टेजेस दिए, देखो ए, बी, सी और डी, ई, एफ. ठीक है, तो सम ऑफ द स्टेज, यहाँ पर सारे स्टेजेस जो हैं वो कुछ ना कुछ चेंजेस हैं. Based on the observation listed, draw the life cycle of frog. Compare the figure drawn by you with 10.8. ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो भी चेंजेस आपको नजर आए, चेंजेस इन डिफरेंट लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, आपको यहाँ पर वो फिल करना है. यहाँ पे आप देखो ए जो है ना, यहाँ जो ए दिया हुआ है, ए में हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एग्स हैं. ठीक है, तो ए में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है ये एग्स हैं. ठीक है, स्टेज ए में एग्स आएगा, बी में क्या आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो एफ वाला है ना, एफ वाला चेंजेस इन डिफरेंट, एफ वाला जो है वो यहाँ आना चाहिए बी में. ठीक है, बी में आना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये स्टेज क्या है, ये स्टेज 1 ही है, बट यहाँ पर ये थोड़े से ग्रो हो गए हैं, एग्स थोड़े से ग्रो हो गए हैं. सी में देखो आप, सी में कौन सा आएगा, यहाँ पर सी में जो ये सी पार्ट दिया है ये सी में आएगा. ये क्या है, ये इट हैज डेवलप्ड इनटू टैडपोल विथ, यू कैन सी हियर इट इज विद टेल. टैडपोल के साथ क्या है, टेल है. ठीक है, डी में आपको नजर आ रहा है ये टैडपोल के साथ क्या है, टैडपोल में टेल के साथ क्या है, यहाँ पे लेग्स भी यहाँ पर हमें नजर आ रही है. ठीक है, उसके बाद ई आप देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो पार्ट दिए ना, देखो बी पार्ट दिया है, ये है फ्रॉगलेट. ठीक है, ये फ्रॉगलेट में चेंज हो गया, और फ्रॉगलेट के बाद फाइनली ये किस में चेंज हो गया, अडल्ट फ्रॉग में. तो ये पूरी हमारी स्टेज है. ठीक है, ए में हमें सिंपल नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको मैंने बताया, ये है एग्स को हम क्या और भी क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ एग्स को स्पॉन. ठीक है, तो ये स्पॉन है यहाँ पर ए में. ठीक है, बी में आपको ये जो नजर आ रहा है ना एफ वाला, ये बी में आएगा यहाँ पर. ठीक है, ये स्पॉन्स जो हैं ये थोड़े से क्या हो गए हैं, ये जो ग्रो कर गए हैं. ठीक है, सी में आपको यहाँ पर टैडपोल नजर आ रहा है, ये टैडपोल है, टैडपोल विद टेल. डी में आपको टैडपोल नजर आ रहे हैं, साथ में टैडपोल के साथ आपको लेग्स भी नजर आ रही हैं. ई में आपको ये बी वाला जो दिया है ये आएगा. ठीक है, ये आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये फ्रॉगलेट है. और उसके बाद लास्ट में एफ में आएगा आपके पास ई वाला कि ये प्रॉपर अडल्ट फ्रॉग है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको फिल करना है. सम ऑफ द स्टेजेस हैव बीन क्लब्ड टुगेदर. फॉर एग्जांपल, स्टेजेस ए एंड एफ in figure 10.7 have been kept together in stage 1. You will find 4 stages in the life cycle of a frog. अब हमें पता लगेगा 4 stages कौन सी हैं. The egg stage, which progresses to embryo stage, the tadpole stage consisting of early stage with tail and then and no legs, and late stage with hind legs, the froglet stage and adult frog stage. So you can clearly see here first stage जो है जहाँ पे spawn आपको नजर आ रहे हैं cluster of eggs. ठीक है, उसके बाद उसके अंदर आपको embryo नजर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा grow हो गए हैं. सेकेंड स्टेज में 2 पार्ट्स में डिवाइड है, tadpole with tail and then tadpole with legs, hind legs. ठीक है, then after that you can see third stage जिसे froglet बोलते हैं हम, froglet stage, and finally fourth stage जो है adult frog. ठीक है, discuss in the class along with the following points how are these eggs of frog different from the eggs or that you may have seen. फ्रॉग के एग्स जो हैं वो डिफरेंट कैसे हैं, फ्रॉग के एग्स जो हैं वो वाइट से फ्लूइड में नजर आ रहे हैं आपको. ठीक है ना. विच स्टेज हैज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, कौन सी स्टेज ऐसी जिसमें सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन की है. ठीक है, सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन की जो है वो कौन सी है. इज देयर अ चांस in the habitat during, is there a chance in the
change in the habitat during the various stages in life cycle of frog. How do the special features support the stage? Observe 10.8 figure. You will see that tadpole develop legs but still have tails. Tails help them to swim in water. आपको यहाँ पे पता चल जाएगा. देखो tadpole जो है ना उसकी tail है, but still टेल जो है ना वो क्या करती है, इसके पास लेग्स भी हैं टैडपोल के पास. बाद में जो है यहाँ पे देखो हिंड लेग्स भी आ गए. तो जो टेल है ना वो हेल्प करती है इनको स्विम करने में, डायरेक्शन चेंज करने में. टैडपोल्स ग्रो ग्रेजुअली एंड स्टार्ट लुकिंग लाइक लिटिल फ्रॉग्स कॉल्ड फ्रॉगलेट. ठीक है, टैडपोल जो है वो किस में चेंज हो जाता है, फ्रॉगलेट में. फ्रॉगलेट क्या है, वो लिटिल फ्रॉग को हम बोलते हैं फ्रॉगलेट. दे स्टिल लिव इन वाटर बट बिगेन टू स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड. तो सम टाइम on land and sometime in water. They continue to grow and lose their tails completely. Their legs become strong to help them to jump and jump on land. They become fully developed adult frogs living both in water and on land. तो टोटली जब ये अडल्ट फ्रॉग बन जाती है तो ये वाटर पे भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं. ठीक है. सी एग्स जिसे हम प्रॉन बोलते हैं, प्रॉन बोलते हैं जिसे. Then tadpole with tail, then tadpole with legs, then froglet, then adult frog. So this is life cycle of a frog. Okay. Eggs, which is called as spawn, which develops into embryo, then tadpole with tail, tadpole with legs, then froglet, and then adult frog. Do you think that birds also show significant change in various stages of their life cycle? How does the life cycle of animals differ from that of plants? Okay, so now they are talking about animals also and birds also, because everyone has some stages of life cycle. Plants and animals are a part of living world. They go through various changes during the course of their lives. We have learned that a tiny plant grows and develop into a big tree. आपको पता है tiny plant जो है एक seed जो है वो plant में develop होता है and then it changes into a big tree. We have also learned how animals grow and change from young ones to adult. So in this we have also learned about the animals, like we have learned about mosquito and frog, that how they grow and change from the young ones to the adult. This journey varies from animal for each animal, making it unique and special. So this journey, ये जो journey जो है ये varies है, change करती है, मतलब हर तरह के एनिमल के लिए और हर किसी की अलग अलग यूनिक और स्पेशल है. We have seen pupa changes into insect, tadpole change into frog. Such changes are important for plants and animals to survive and to maintain continuity of their kind. We should also take care of them and their homes. By nurturing and preserving their homes, we contribute to the flourishing living world. So we आपने क्या देखा है इस लेसन में कि प्यूपा किस तरह इंसेक्ट में चेंज हो जाता है ना, मॉस्किटो में. टैडपोल कैसे फ्रॉग में चेंज हो जाता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? प्लांट और एनिमल्स के लिए, सर्वाइवल के लिए, एज वेल एज ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए है, ताकि वो अपनी कॉन्टिन्यूटी को जो है अपने काइंड को कंटिन्यू कर सके. ठीक है. मॉस्किटो अपनी तरह का मॉस्किटो डेवलप कर सके, फ्रॉग अपनी तरह का आगे फ्रॉग बना सके. ठीक है. तो इसलिए ही हमें इन सब का ध्यान रखना चाहिए और हमें जो है वो इनके होम को प्रिजर्व करना चाहिए, ताकि हम लिविंग वर्ल्ड को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें. So with this we have come to the end of the lesson. Now I will meet you with the summary and question answers of this lesson. I hope you have understood this lesson and you will also like my videos and subscribe my channel. So thank you so much. See you in the next video. Take care. Goodbye.